Hello everyone. In last video we will discuss about general morphology of the cockroach, different parts present in its body, morphological details we have discussed. Beside this I have completed digestive system and respiratory system. In today's video we will discuss some more systems of the cockroach. I hope you all are enjoying the video. Keep watching the video, and if you like the video, keep on sharing with your friends so that they can also derive benefit from this. Thank you. This is circulatory system. In the circulatory system of cockroach, we will discuss about heart, different type of sinuses present in the body of cockroach, and blood of the cockroach. Now, first of all, the type of circulatory system. Circulatory system present in cockroach is of open type. Open circulatory system. What does it mean? There are no blood vessel. There is only one blood vessel, that is anterior aorta. After that, blood will move through these spaces, and these blood filled spaces are known as sinuses. So open circulatory system means blood do not flow in blood vessels. Blood will bath the tissue. If we talk about different kind of fluids present in our body, inside the cell cytoplasm is there, outside the cell tissue fluid is there, within the blood vessels blood is there. और अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो vertebrates में lymphatic system is there, and in lymphatic system lymph is there. But in case of cockroach, there is no separate, there is no distinction of blood and tissue fluid. Both blood and tissue fluid are same thing. जैसे यहाँ पर different organs are there, and organ में जो fluid present होगा उसे हम बोलेंगे tissue fluid. क्योंकि circulatory system open है, blood vessels नहीं है, तो blood पूरी body के अंदर बात करेगा. इसका मतलब यहाँ पर blood और tissue fluid एक ही बात होगी, तो blood को हम बोलेंगे hemolymph. Body cavity of cockroach is known as hemocoel. Seal means cavity, hem means blood. So फिर से देखेंगे circulatory system. What type of circulatory system is there? Open. Blood of cockroach is known as hemolymph. Body cavity of cockroach is known as hemocoel. अब hemolymph की बात करें, hemolymph is colorless. हम अपने ब्लड की बात करें तो हमारा ब्लड रेड कलर का है. बाकी और ऑर्गेनिजम्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्ड पिगमेंट्स आर देयर, जैसे हीमोसाइनिन है. और यहाँ पर जो पिगमेंट है दैट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज नॉट लिंक्ड विद सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज ऑक्सीजन डायरेक्ट सप्लाई होगी टिश्यूज को, सो देयर इज नो रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. सो हीमोलिम्फ ऑफ कॉकरोच इज कलरलेस. Hemolymph is having plasma and corpuscles, और hemolymph का function क्या होगा? It will keep the tissue moist and help in circulation of different substances. Beside this, it will also help in excretion. कि whatever excretory waste are there, they are released in hemolymph, और hemolymph से वो कहाँ जाएंगे? Malpighian tubule में, जो हम next slide में discuss करेंगे. So in case of cockroach, open circulatory system is there, means blood flows in open space. Blood of cockroach is known as hemolymph. Body cavity of cockroach is known as hemocoel. Now hemolymph is colorless and do not have any respiratory pigment. Now, so that's all about in general, that what type of circulatory system is there and what type of hemolymph is there. Now moving on to heart. Heart of invertebrates is present on dorsal side. अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, जैसे हम अपना हार्ट देखें तो हमारा हार्ट वेंट्रली सिचुएटेड है, बट इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स हार्ट इज सिचुएटेड ऑन डॉर्सल साइड. सो इन केस ऑफ कॉकरोच हार्ट इज सिचुएटेड डॉर्सली. This is chambered heart. How many chambers are there? There are 13 chambers in the heart. So heart of the cockroach is tubular, means tube-like, chambered. Total 13 chambers are there and is located dorsally. Heart is located dorsally. अब हम पोजीशन हम इसकी बताएंगे कि dorsally कहाँ है. First of all, you should try to understand this diagram. This is cockroach. अगर हम cockroach की body को देखें तो body of cockroach is having 3 sinuses. Sinuses means open space filled with blood, जहाँ पर और body organs भी होंगे, tissues है. ये देखिए, this is pericardial sinus. This is perivisceral sinus. दिस इज पेरीन्यूरल साइनस. कैसे समझेंगे आप? ये समझिए कि ये बॉडी वॉल है कॉकरोच की, दिस इज अपर बॉडी वॉल, ये नीचे की साइड है. बॉडी वॉल और ये बॉडी के अंदर स्पेस है,
यहाँ पर दो डायाफ्राम प्रेजेंट है, दिस इज दिस वन, दिस इज ये आर्क डायाफ्राम है, कॉन्वेक्स है, कर्व्ड है, ये देखिए दिस इज वन मोर डायाफ्राम। ये जो परफोरेटेड डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन जिसके ऊपर मेरा मार्कर अभी रन कर रहा है, दैट इज वेंट्रल डायाफ्राम। ये देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है वेंट्रल डायाफ्राम। दिस इज dorsal diaphragm. So body of cockroach is divided into 3 sinuses on the basis of presence of diaphragm. ये देखिए dorsal body wall and dorsal diaphragm के बीच में है pericardial sinus. Why pericardial? Because heart is situated in pericardial sinus. बीच वाले पार्ट को हम कहेंगे पेरीविसरल साइनस। विसरा वर्ड इज यूज्ड फॉर बॉडी ऑर्गन। मोस्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन आर सिचुएटेड इन दिस पार्ट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेरीविसरल साइनस। पेरीन्यूरल साइनस, सो सिंपल, वेंट्रल बॉडी वॉल एंड वेंट्रल डायफ्राम के बीच में जो साइनस होगा उसे हम कहेंगे पेरीन्यूरल साइनस, बिकॉज जो नर्व कॉर्ड है दैट लाइज इन पेरीन्यूरल साइनस। So we were discussing about heart. So heart is tubular, 13 chambered, located dorsally, कहाँ? पेरिकार्डियल साइनस में। अब हम थोड़ा सा फ्लो पढ़ लेते हैं। ब्लड का जो फ्लो है वो हार्ट में होगा फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड। यहाँ पर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लास्ट चैम्बर से स्टार्ट होगी एंड देन इट इज मूव्ड टुवर्ड्स एंटीरियर साइड, राइट। ये देखिए these are chambers of the heart. On the lateral side, यहाँ पर each chamber communicate with outside by ostia. हार्ट के हर चैम्बर के लेटरल साइड पर क्या प्रेजेंट है? ostia. And what is the function of these ostia? They will allow entry of blood within the heart. ध्यान रहे, ostia are guarded by valve and valve ensure unidirectional flow of blood. ब्लड का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। ब्लड हमेशा कहां से कहां जाएगा? पेरिकार्डियल साइनस से हार्ट में। यानी कि हार्ट में ब्लड की एंट्री को कौन अलाउ करेगा? ostia. Right? So ostia are aperture present on lateral side of each chamber. They allow unidirectional movement of blood from pericardial sinus to heart. थोड़ा सा फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। This is dorsal diaphragm. When the diaphragm, यहाँ one more thing, ये देखिए ये एलरी मसल्स है। इस डायग्राम से देखें तो आपको ये लगेगा कि जो एलरी मसल्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद हार्ट, बट ऐसा नहीं है। हाउ मेनी पेयर ऑफ एलरी मसल्स आर देयर? 12 पेयर। सो विच मसल्स आर एसोसिएटेड विद सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस? एलरी मसल्स। अब ये हमें किस वजह से ऐसे दिखाई दे रही हैं? जस्ट हैव ए लुक एट दिस। ये डॉर्सल डायाफ्राम है। एक एंड से जो एलरी मसल्स हैं दे आर अटैच्ड विद डॉर्सल डायाफ्राम और दूसरे एंड से बॉडी वॉल के साथ जुड़ी हुई हैं और ये हार्ट के दोनों साइड है पेयर पे। तो आप जब आप ऊपर से देखेंगे तो हमने लेटरल व्यू डायग्राम दिखाया है, जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको हार्ट तो सेंटर में दिखाई देगा और दोनों साइड क्या दिखाई देंगी? एलरी मसल्स। These एलरी मसल्स आर नॉट अटैच्ड विद हार्ट एट ऑल, दे आर अटैच्ड विद डॉर्सल बॉडी वॉल एज वेल एज डायाफ्राम। What will happen when these muscles contract? जब एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी डायाफ्राम विल बिकम फ्लैट। जैसे ही डायाफ्राम फ्लैट होगा पेरिकार्डियल साइनस का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। सो व्हेन डॉर्सल डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट इट विल बिकम फ्लैट। ब्लड जो है वो पेरीविसरल साइनस से कहां जाएगा? पेरिकार्डियल साइनस में। जैसे ही ब्लड पेरिकार्डियल साइनस में गया थोड़े टाइम के बाद ये मसल्स ऑटोमेटिकली क्या करेंगी? रिलैक्स। डायाफ्राम वापिस से कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स्ड। और अल्टीमेटली पेरिकार्डियल साइनस में ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या होगा? ज्यादा। अब क्या होगा? हाई प्रेशर विल स्टिमुलेट ओपनिंग ऑफ ओस्टिया। ये जो ओस्टिया हैं वो ओपन हो जाएंगे और ब्लड पेरिकार्डियल साइनस से कहां जाने लगेगा? हार्ट में। ओस्टिया ओपन और ब्लड जो है वो पेरिकार्डियल साइनस से कहां जाने लगेगा? हार्ट में। जैसे जैसे हार्ट के चैम्बर ब्लड से फिल होने लगेंगे ब्लड वापिस आ सकता है पेरिकार्डियल साइनस में, नहीं आएगा। बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए ओस्टिया क्लोज हो जाएंगे। तो
इन इवेंट्स के बाद कॉकरोच का हार्ट पूरी तरीके से किससे भर चुका है? ब्लड से। एक बार फिर देखेंगे। एलरी मसल्स फैन शेप्ड मसल्स हैं, 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स हैं, एक एंड इनका डॉर्सल बॉडी वॉल से जुड़ा है और दूसरा एंड इनका डॉर्सल डायाफ्राम से जुड़ा है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो डायाफ्राम फ्लैट होगा, पेरीविसरल साइनस का साइज कम होगा तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर ज्यादा, पेरिकार्डियल साइनस में ब्लड का प्रेशर कम, तो पेरीविसरल साइनस से हीमोलिम्फ मूव करके कहाँ जाएगा? पेरिकार्डियल साइनस में। थोड़े टाइम के बाद जब एलरी मसल वापस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगी तो डायाफ्राम अपनी जगह वापस चला जाएगा। रिलैक्सेशन ऑफ एलरी मसल्स विल मेक डायाफ्राम अगेन बर्स्ड। क्या होगा? पेरिकार्डियल साइनस में ब्लड का प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, इसकी वजह से जो ओस्टिया हैं वो ओपन हो जाएंगे और ब्लड की एंट्री किस में होगी? हार्ट में। नाउ ऑल द चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर फिल्ड विद ब्लड हीमोलिम्फ। जैसे ही कंडीशंस क्रिएट होंगे कि हीमोलिम्फ बाहर जाने लगेगा, ओस्टिया क्लोज हो जाएंगे। नाउ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड, और जो ब्लड का मूवमेंट है वो पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर की तरफ होगा और यहाँ पर आयोटा उसे हेड रीजन में ले जाएगी, देन पेरीविसरल साइनस, देन पेरिकार्डियल साइनस। So this is all about circulatory system of the cockroach. So heart 13 chambered, 12 pair of ellery muscles are associated with circulation of blood. मेनली जो हार्ट है वो पेरिकार्डियल साइनस में है, ब्लड जो है वो कलरलेस है और उसे हम हीमोलिम्फ कहेंगे। बॉडी कैविटी को क्या कहेंगे? हीमोसील। Now we will discuss excretory system of cockroach. Certain very interesting facts are there that I will be discussing with you. Excretory system of cockroach, if we talk about, so there are different type of organs which are associated with excretion. The most important one is Malpighian tubule. Malpighian tubule, Malpighi is the name of scientist, tubule means tube-like structure. As I have discussed in digestive system of cockroach, midgut and hindgut के junction पे क्या present है? Malpighian tubules. These Malpighian tubules are tube-like structure. They are located at the junction of midgut and hindgut. Malpighian tubule are basically concerned with osmoregulation as well as excretion. Osmoregulation means maintenance of water and iron in the body. Excretion, Malpighian tubule excrete uric acid. Nitrogenous waste in case of insect is uric acid. अगर हम properties discuss करें कि how the uric acid is different from ammonia and urea, other nitrogenous waste, uric acid is almost insoluble in water and is passed out in dry form. This will give advantage to survive insect in very dry habitat without losing water. If we talk about ammonia and urea, removal of ammonia require lot of water from the body. Insects जो हैं, they are able to excrete uric acid. That's why they are able to survive in a very dry area. So first of all, we will discuss about excretory organ is Malpighian tubule. Malpighian tubule located at the junction of midgut and hindgut. Tube-like structure है, ये देखिए यहाँ पर. These are lined by ग्लैंडुलर सिलिएटेड एपिथेलियम. ग्लैंडुलर सिलिएटेड एपिथेलियम. अगर हम बात करें कि इसके ये जो डिस्टल पार्ट है, दिस डिस्टल पार्ट एंड दिस वन इज प्रॉक्सिमल पार्ट, सम स्लाइट डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर. डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स थोड़ा डिफरेंट फंक्शन करेंगे. दीज मालपीजियन ट्यूब्यूल बाथ इन हीमोलिम्फ. ये हीमोलिम्फ में फ्लोट करते रहते हैं. जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं कॉकरोच के, ऑल विल एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट इन फॉर्म ऑफ पोटाशियम यूरेट. सॉल्ट की फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं. दिस पोटाशियम यूरेट इज सोल्यूबल इन वाटर. सो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ कॉकरोच will release nitrogenous waste as potassium urate. कहाँ रिलीज कर देंगे? हीमोलिम्फ में. From the hemolymph, potassium urate is absorbed by this epithelium. ये जो एपिथेलियम सेल है वो पोटाशियम यूरेट को हीमोलिम्फ से कहाँ ले आएगी? ल्यूमन में. Within the lumen, potassium urate combine with CO2 and water to form uric acid and potassium bicarbonate.
क्या कहा है हमने, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं सब क्या एक्सक्रीट करेंगे, पोटेशियम यूरेट। कहाँ पर, हीमोलिम्फ में। और हीमोलिम्फ से ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये हीमोलिम्फ से पोटेशियम यूरेट को एब्जॉर्ब कर लेती है अलोंग विद वाटर, बिकॉज इट इज सोल्यूबल इन वाटर। सो वाटर के थ्रू पोटेशियम यूरेट कहाँ आ जाएगा, ल्यूमन में। ल्यूमन में आने पर पोटेशियम यूरेट कंबाइन विद CO2 एंड वाटर टू फॉर्म यूरिक एसिड एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम बाइकार्बोनेट वापस जो है ये एब्जॉर्ब होकर कहाँ चले जाएंगे, हीमोलिम्फ में। एंड यूरिक एसिड जो है वो यहां से फ्लो करके इधर आ जाएगा। लॉट ऑफ वाटर इज, क्योंकि हमें मालूम है यूरिक एसिड इज इनसोल्यूबल इन वाटर, तो वाटर वापस एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला जाएगा, हीमोलिम्फ में। नाउ दिस यूरिक एसिड इज रिलीज्ड इनटू एलिमेंट्री कैनाल। This is again very important point. Excretory system is linked with digestive system. आप ये सोचिए कि अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की इंडिपेंडेंट ओपनिंग होती तो यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए, फ्लश आउट करने के लिए किसकी जरूरत होती, वाटर की, बिकॉज बिना वाटर के तो वो मूव नहीं कर सकता सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर एडवांटेज क्या है कि जो भी यूरिक एसिड है वो कहाँ एक्सक्रीट हो गया, एलिमेंट्री कैनाल में। और जब ये यूरिक एसिड मूव करेगा रेक्टम के थ्रू, रेक्टम की जो वॉल है इसके थ्रू वापस जो है वाटर इज एब्सॉर्ब्ड। सो कॉकरोच इज एबल टू कंजर्व वाटर एंड पास आउट एक्सक्रीटरी वेस्ट इन ऑलमोस्ट ड्राई फॉर्म। जो फीकल मैटर है और जो यूरिन है उसका आउटपुट एनस के थ्रू होगा। सो दिस इज एन एडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज लिंक्ड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। सो किडनी विल नॉट किडनी सॉरी हम में किडनी होती हैं, जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं दे विल एक्सक्रीट पोटेशियम यूरेट। पोटेशियम यूरेट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्लैंडुलर सिलिएटेड एपिथेलियम ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल। और यहाँ से जो है अंदर आने के बाद पोटेशियम यूरेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिक एसिड में। तो बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है कॉकरोच का, अगर बाहर जो निकलेगा उस फॉर्म में यूरिक एसिड। एडवांटेज क्या रहेगा, ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इन वाटर, ड्राई फॉर्म में पास आउट कर सकते हैं। सो दिस इज नंबर 1, मालपीजियन ट्यूब्यूल। हाउ मालपीजियन ट्यूब्यूल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन excretion. Besides malpighian tubule, some other excretory organ are there. First one is fat body. As the name indicate, these structures will store nutrients. Fat, they will store nutrients. जो फैट बॉडीज हैं ये हीमोसील में थ्रू आउट प्रेजेंट होती हैं, मतलब पूरी हीमोसील के अंदर। हीमोसील क्या है, कैविटी ऑफ द कॉकरोच। तो हीमोसील में थ्रू आउट प्रेजेंट होती हैं। इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। मोस्टली सेल्स में क्या फिल होता है, न्यूट्रिएंट्स। फैट बॉडी कंटेन यूरेट सेल्स, और इन यूरेट सेल्स में क्या स्टोर होता है, यूरिक एसिड। ध्यान रहे, दिस यूरिक एसिड इज नॉट रिलीज्ड आउटसाइड, ये कॉकरोच की बॉडी के अंदर ही जमा होता रहेगा। दिस इज फैट बॉडी, नॉट एक्सक्रीटेड एट ऑल। नेफ्रोसाइट्स, नेफ्रोसाइट्स क्या हैं, ये चेन ऑफ सेल्स हैं विच आर प्रेजेंट ऑल अलोंग द हार्ट। पेरिकार्डियल साइनस में हार्ट के दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं। नेफ्रोसाइट सेल्स का काम है जो भी हीमोलिम्फ है वहां से यूरिक एसिड को रीएब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करना और अपनी सेल्स के अंदर, इन सेल्स के अंदर स्टोर करना। ये नेफ्रोसाइट भी यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं करेंगी, अपनी सेल्स में जो नेफ्रोसाइट सेल्स है इनमें स्टोर करके रखती हैं टिल डेथ। सो फैट बॉडी एंड नेफ्रोसाइट्स रिमूव यूरिक एसिड फ्रॉम द हीमोलिम्फ एंड स्टोर इनसाइड देम। इसके बाद क्यूटिकल, क्यूटिकल आउटर मोस्ट बॉडी वॉल है जो काइटिन की बनी हुई है। वहां पर भी थोड़ा सा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो स्टोर होता रहता है और मोल्टिंग के थ्रू वो शेड होता रहता है। यूरिकोज ग्लैंड, यूरिकोज ग्लैंड आर द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। When I will discuss reproductive system, I will share with you. Uricose gland are long tubule of mushroom shaped gland, मेल में प्रेजेंट होती है। These glands also store uric acid, but ये till the death store नहीं रहेगा। During the process of mating, जो whatever uric acid is stored in the gland, it is removed. So during the process of copulation, uric acid stored in uricose gland is removed from the body.
one interesting fact. Recently, a bacteria has been found inside the body of cockroach. What this bacteria is doing? This bacteria is doing a metabolism of uric acid stored in fat body. एंडोसिम्बायोंट है, एंडो मीन्स अंदर, सिम्बायोंट मीन्स दोनों को बेनिफिट है। बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह, खाने के लिए फूड कॉकरोच प्रोवाइड करेगा। और कॉकरोच को ये बैक्टीरिया किस तरीके से हेल्प कर रहा है? जब कॉकरोच नाइट्रोजन डेफिशिएंट फूड ले रहा है, कॉकरोच किसी ऐसे एरिया में है या इस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इज देयर। नाइट्रोजन हमें मालूम है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। नाइट्रोजन इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एज वेल एज डीएनए। सो ड्यूरिंग नाइट्रोजन डेफिशिएंसी दिस बैक्टीरिया विल यूज यूरिक एसिड, और ये यूरिक एसिड को मेटाबोलाइज करेगा, तो बैक्टीरिया को भी यहाँ पर नाइट्रोजन का सोर्स मिलेगा और कॉकरोच को भी। सो कॉकरोच इज हैविंग एडवांटेज। दूसरा अगर हम एडवांटेज देखें, अगर हम टॉक्सिसिटी लेवल की बात करें, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। अमोनिया के बाद जो टॉक्सिसिटी लेवल में आता है दैट इज, अमोनिया से जो कम टॉक्सिक है दैट इज यूरिया, और यूरिया से जो कम टॉक्सिक है दैट इज यूरिक एसिड। अब कम टॉक्सिक का मतलब ये नहीं है कि टॉक्सिक नहीं है, लेकिन टॉक्सिसिटी लेवल कब बढ़ सकता है? जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो। मान लीजिए कॉकरोच की बॉडी में, फैट बॉडीज में या नेफ्रोसाइट्स में यूरिक एसिड लगातार स्टोर हो रहा है, तो जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी इट माइट क्रिएट टॉक्सिसिटी। जैसे स्लीपिंग पिल आप एक लेंगे तो नींद आएगी, पूरी बॉटल अगर ले लेते हैं तो आप की डेथ भी हो सकती है। सो ऐसा नहीं है कि स्लीपिंग पिल टॉक्सिक नहीं है, नो डाउट इट इज टॉक्सिक बट एट वेरी हाई कंसंट्रेशन। सो इन द सेम वे यूरिक एसिड इज टॉक्सिक बट एट वेरी हाई कंसंट्रेशन। सो फैट बॉडीज और नेफ्रोसाइट्स में जो यूरिक एसिड स्टोर है दैट माइट कॉज टॉक्सिसिटी टू द कॉकरोच। तो यहाँ पर थैंक्स टू दीज बैक्टीरिया जो इन फैट बॉडीज एंड नेफ्रोसाइट्स में जो यूरिक एसिड स्टोर है उस यूरिक एसिड को मेटाबोलाइज करते हैं और रीयूज में लेकर आते हैं। नाइट्रोजन जो है वो रीयूज में आता है। तो दैट्स ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। आपको याद करने एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? मालपीजियन ट्यूब्यूल, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स, क्यूटिकल, यूरिकोज ग्लैंड। एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिक एसिड। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एलिमेंट्री कैनाल से लिंकेज है, तो दिस इज एन एडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर की मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स एलिमिनेशन। और ये भी एक रीजन है कि जो इंसेक्ट्स हैं दे आर फाउंड इन वेरी ड्राई एरिया, ड्राई हैबिटेट के अंदर ये मिलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। Nervous system of cockroach. This I have discussed in phylum Annelida as well as phylum Arthropoda. Basic plan जो है nervous system का in all invertebrates is same. If we talk about invertebrate nervous system, so they are having two nerve cord. Just have a look at this one, this. These are not, this is single, these are two. This is one, this is one. Double nerve cord is there. Nerve cord is situated on ventral side. If we talk about our nerve cord, in case of chordates, nerve cord is dorsal, single, hollow. जबकि नॉन कॉर्डेट्स की बात करें, कॉकरोच की बात करें, बाकी जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें, तो यहाँ पर क्या है? नर्व कॉर्ड इज वेंट्रल, इट इज सिचुएटेड ऑन वेंट्रल साइड। डबल है, हम में डॉर्सल साइड है, यहाँ वेंट्रल है, हम में सिंगल है, इनमें डबल है, हम में होलो है, यहाँ पर सॉलिड है। आवर नर्व कॉर्ड डू नॉट हैव गैंग्लिया, हियर इट इज ganglionated. Ganglionated means several interval ganglia are there. What is ganglia? Group of neuron outside brain and spinal cord. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बाहर अगर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे गैंग्लिया। लेकिन अगर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे न्यूक्लियाई, राइट। सो इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, in case of non-chordate cockroach I am discussing nerve cord are double, solid, ganglionated, ventral. अगर हम गैंग्लिया की बात करें, in case of cockroach nerve cord में there are 3 thoracic ganglia,
1 in prothorax, 1 in mesothorax, 1 in metathorax. 6 abdominal ganglia, नंबर आपको याद होना चाहिए. 6 abdominal ganglia हैं, 3 thoracic ganglia हैं. Now नर्व कॉर्ड के अलावा और क्या प्रेजेंट होगा? देयर इज नर्व रिंग. नर्व रिंग की अगर हम बात करें तो नर्व रिंग इज हैविंग दिस. ये आप देखिए ओइसोफेगस के ऊपर आपको दो इस तरह से दिखाई देंगे. सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लिया, दे आर प्रेजेंट अबाउ द ओइसोफेगस. अगर हम अपनी फिंगर को ओइसोफेगस कहें तो आप ये सोचिए फिंगर के ऊपर आपको दो क्या मिलेंगे? ये दीज आर पेयर ऑफ सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लिया ऑल्सो नोन एज ब्रेन. फिंगर के नीचे की तरफ आपको मिलेंगे सब ओइसोफेजियल गैंग्लिया, क्योंकि फिंगर को हमने एलिमेंट्री कैनाल कहा है. तो एलिमेंट्री कैनाल में ओइसोफेगस के ऊपर तो है सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लिया और ओइसोफेगस के नीचे क्या है? सब ओइसोफेजियल गैंग्लिया. दे आर ज्वाइंड टुगेदर बाय सर्कम ओइसोफेजियल कनेक्टिव. They are joined together by circumosophageal connective. So ये आपकी क्या बन गई? एक रिंग बन गई. ओइसोफेगस के ऊपर ये हैं, ये ओइसोफेगस के नीचे हैं. 1 मिनट. ये ओइसोफेगस के ऊपर हैं सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लिया और ब्रेन. बिलो द ओइसोफेगस सब ओइसोफेजियल गैंग्लिया एंड बोथ आर ज्वाइंड टुगेदर बाय सर्कमओइसोफेजियल कनेक्टिव. यहाँ पे कॉमिशोर लिखा है, कॉमिशोर वर्ड रॉन्ग है, कनेक्टिव होगा. कॉमिशोर वर्ड हम यूज करते हैं जब एक ही तरह के दो गैंग्लिया आपस में जुड़े हों. जैसे सुप्रा को जोड़ने के लिए जो कनेक्शन होगा उसे हम कॉमिशोर कहेंगे, लेकिन जब डिफरेंट टाइप के गैंग्लिया जुड़ते हैं उसको हम कहेंगे कनेक्टिव. सेम टाइप के गैंग्लिया है कॉमिशोर, डिफरेंट टाइप के गैंग्लिया है कनेक्टिव. इस डायग्राम में इन्होंने कॉकरोच का जो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट भी इन्होंने शो किया, बिकॉज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी होता है कॉकरोच में. ये सिंपैथेटिक का पार्ट है, फ्रंटल गैंग्लिया, और दिस इज रिकरेंट नर्व, दिस इज इनग्लूवियल गैंग्लिया, प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लिया. सो देयर इज नो नीड टू स्टडी अबाउट दिस. यू हैव टू मेन फोकस ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच, नॉट द सिंपैथेटिक. ये देखिए बी जो इन्होंने यहाँ पर ये इन्होंने शो किया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ब्रेन that is represented by supraoesophageal ganglia, suboesophageal ganglia joined together by circumoesophageal connective. इसके बाद जो नर्व कॉर्ड हैं, 2 हैं, डबल हैं, सॉलिड हैं, गैंग्लियोनेटेड हैं, 3 गैंग्लिया थोरेक्स में हैं, 6 गैंग्लिया हैं एब्डोमेन में. अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की तो वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रखा है. वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द हेड. और यही वजह है कि बिना हेड के भी कॉकरोच 1 वीक तक लगभग सरवाइव कर सकता है. 1 वीक मतलब जब तक फूड अवेलेबल है, एनर्जी अवेलेबल है, टिल इट कैन सरवाइव. So that's all about nervous system of the cockroach. Mainly जो nervous system है that is spread throughout the body. Very small amount of nervous system is present in the head, and that's why cockroach can survive for about 1 week without head. Let's discuss male reproductive system. Male reproductive system of cockroach consists of pair of testes जो present हैं 4th to 6th abdominal segment में. टेस्टिस से अराइज होती हैं वास डिफरेंस, सो दीज आर वास डिफरेंस एंड बहुत दीज वास डिफरेंस विल कम्युनिकेट विद इजैकुलेटरी डक्ट. सो स्पम्स का अगर हम रूट देखें, स्पम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, टेस्टिस से ये जाएंगे वास डिफरेंस और वास डिफरेंस से ये रिलीज होंगे इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू. They are released outside through male gonopore. So opening of ejaculatory duct is known as male gonopore or male genital aperture. This is situated on ventral phelomere. Phelomere अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है ये. So testis, vas deferens, then ejaculatory duct and then outside. Now ejaculatory duct के top पे one gland is present. This is accessory reproductive gland. What is the name of this gland? This is mushroom shaped utricular gland. So mushroom shaped utricular gland is present in 6th to 7th abdominal segment. Present at the top of ejaculatory duct. This gland is having 3 type of tubule: seminal vesicle,
द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल इज टू स्टोर द स्पर्म्स टेम्परेरीली। कॉपुलेशन के दौरान स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू फीमेल कॉकरोच, टिल रिलीज दे आर स्टोर्ड टेम्परेरीली इन सेमिनल वेसिकल। इसके अलावा सिक्रीशन ऑफ स्मॉल टिब्यूल, ये स्मॉल टिब्यूल भी प्रेजेंट है यूट्रिकुलर ग्लैंड में। स्मॉल टिब्यूल के सिक्रीशन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, दे विल प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फ्लूइड which provide nutrition to spermatozoa. So sperms are temporarily stored in seminal vesicle. From here mass of the sperm is glued together. स्मॉल वेसिकल से आएगा न्यूट्रिटिव फ्लूइड और ये कहाँ रिलीज होंगे? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स में। In the long tubule, masses of the sperm along with fluid get surrounded by a protective layer. यहां पर क्या कहना हम चाह रहे हैं कि जब स्पर्म का रिलीज होगा मेल कॉकरोच से तो वो स्पर्म एक बंडल की फॉर्म में होंगे। उस बंडल को हम कहेंगे, स्पर्म के बंडल को हम कहेंगे स्पर्मेटोफोर। व्हाट इज स्पर्मेटोफोर? मास ऑफ स्पर्मेटोजोआ ग्लूड टुगेदर, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, एंड दे आर कवर्ड बाय 3 लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पर्मेटोफोर। तो स्पर्मेटोफोर के अराउंड पहली कवरिंग कौन सीक्रीट करेंगे? लॉन्ग टिब्यूल। लॉन्ग टिब्यूल के सीक्रीशंस, दे विल सीक्रीट फर्स्ट लेयर अराउंड मास ऑफ स्पर्मेटोजोआ प्लस सम न्यूट्रिटिव फ्लूइड रिसीव्ड फ्रॉम स्मॉल वेसिकल्स। क्या कहा है हमने? फिर देखेंगे। मशरूम शेप्ड यूट्रिकुलर ग्लैंड इज हैविंग 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। सेमिनल वेसिकल जहां पे स्पर्म टेम्परेरीली स्टोर होंगे, स्मॉल टिब्यूल के सिक्रीशन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे टू द स्पर्मेटोजोआ। लॉन्ग ट्यूब्यूल के सिक्रीशन मास ऑफ स्पर्मेटोजोआ प्लस न्यूट्रिटिव फ्लूइड के अराउंड एक लेयर सिक्रीट करेंगे और अब हम इस स्ट्रक्चर को कहेंगे स्पर्मेटोफोर। अब जब स्पर्मेटोफोर यूट्रिकुलर ग्लैंड से रिलीज होकर कहां आएंगे? इजैकुलेटरी डक्ट में। सो वन मोर लेयर इज सिक्रेटेड अराउंड इजैकुलेटरी डक्ट। सो स्पर्मेटोफोर का जो पहली लेयर है दैट इज सिक्रेटेड बाय लॉन्ग ट्यूब्यूल ऑफ यूट्रिकुलर ग्लैंड और जो सेकंड लेयर है दैट इज सिक्रेटेड बाय इजैकुलेटरी डक्ट। यहां पर हमें कोरिलेट करना चाहेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने बताया कि यूरिकोज ग्लैंड इन लॉन्ग ट्यूब्यूल्स को ही एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं? यूरिकोज ग्लैंड, जहां पर क्या स्टोर होता है? यूरिक एसिड, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन दिस यूरिक एसिड इज रिलीज्ड आउटसाइड। So I hope यहाँ तक क्लियर है। टेस्टिस वेरी सिंपल, देन वॉस डिफरेंस कम्युनिकेट विद इजैकुलेटरी डक्ट एज वेल एज सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल में स्पर्म स्टोर होंगे, स्मॉल ट्यूब्यूल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, लॉन्ग ट्यूब्यूल मास ऑफ स्पर्मेटोजोआ के अराउंड पहली लेयर क्रिएट करेंगे, दूसरी लेयर कौन करेगा? इजैकुलेटरी डक्ट के सिक्रीशन। अब इजैकुलेटरी डक्ट के पीछे की साइड प्रेजेंट है ए सैक लाइक फैलिक ग्लैंड। सो फैलिक ग्लैंड इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू इजैकुलेटरी डक्ट और ये जो फैलिक ग्लैंड है दिस विल लीड इनटू फैलिक डक्ट और जो फैलिक डक्ट है दैट विल ओपन ऑन लेफ्ट फेलोमियर। ये लेफ्ट फेलोमियर यहां पर प्रेजेंट है। सो लेफ्ट फेलोमियर में कौन ओपन होगा? फैलिक डक्ट। Now what is the function of phallic gland? At the time of copulation जब स्पर्मेटोफोर यहां से रिलीज होंगे, बिफोर एंट्री इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या होगा? फैलिक ग्लैंड के सिक्रीशन स्पर्मेटोफोर के अराउंड एक थर्ड लेयर सिक्रीट करेंगे जो एनवायरमेंट जो एयर के कांटेक्ट में आते ही हार्ड हो जाएगी। सो दिस इज अगेन प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। सो थर्ड लेयर अराउंड स्पर्मेटोफोर इज सिक्रेटेड बाय सिक्रीशन फ्रॉम फैलिक ग्लैंड। नाउ मूविंग ऑन टू फेलोमियर्स। ये फेलोमियर्स क्या है? फेलोमियर्स आर नथिंग बट एक्सटर्नल जेनिटेलिया, part of reproductive system which are visible from outside. Secondly, they help in process of mating. Third, they will help in process of transfer of spermatozoa into female reproductive tract. अभी हमने यहाँ डिस्कस किया कि जो स्पर्मेटोजोआ हैं वो स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में बंडल की फॉर्म में अरेंज्ड हैं, तो स्पर्मेटोफोर की रिलीज में हेल्प करेंगे। दे विल ऑल्सो हेल्प इन होल्डिंग द फीमेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मीटिंग। सो 3 फेलोमियर्स है यहाँ पर। दिस इज राइट फेलोमियर। ये देखिए ये राइट फेलोमियर है जो डार्क ब्राउन से इन्होंने नीचे शो किया है। दिस इज
ventral phallomere. So ventral phallomere पर male gonopore is situated. So male gonopore will open in ventral phallomere और ventral phallomere के just ऊपर क्या है, right phallomere. और यहाँ पर ये जो पूरा portion अब बच गया है, this one, this is left phallomere, and in left phallomere two labeling are there. One is pseudopenis and this is titillator. So both these are present on left phallomere. एक कोरिलेट करें कि जब आपने अपने हार्ट का डायग्राम ड्रॉ किया होगा तो इस साइड आपने लेफ्ट चैम्बर मेंशन किया होगा, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या लेबल कर रहे हैं, राइट फेलोमियर. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सोचने की कोशिश करेंगे. आंसर हमने आपको पहले बताया है इनडायरेक्ट वे में. In case of non-chordates, nerve cord is situated on ventral side. नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड होती है. तो जब भी हम डाइसेक्शन करेंगे डॉर्सल साइड से करेंगे. तो जब डॉर्सल सरफेस से कट करेंगे, जैसे आप फर्श पर लेट जाइए और बैक से आपको कोई डाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका जो लेफ्ट साइड है वो कौन सा साइड होगा, सॉरी, जो आपका लेफ्ट साइड है वो ये वाला साइड होगा. अगर आप बैक से फर्श पर नॉट बैक से, अगर आप अपने फ्रंट से जहां पे माउथ प्रेजेंट है वो फेस आप फर्श पर वो फेस फर्श की साइड करके आप लेट गए हैं और आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो ऊपर की तरफ है, तो ये आपका लेफ्ट साइड होगा और ये आपका राइट साइड होगा. कॉकरोच का जो डाइसेक्शन है वो हम डॉर्सली करेंगे. जैसे कॉकरोच को हमने सीधा यहां पर रख दिया, सीधा मतलब आप ऐसे लेट जाइए कि आपकी जो बैकबोन है वो ऊपर है. तो जब आपकी बैकबोन ऊपर होगी तो इधर आपका लेफ्ट साइड होगा, इधर आपका क्या होगा, राइट साइड. जबकि हम अपना डाइसेक्शन ऐसे करते हैं कि अपनी वर्टिब्रल कॉलम नीचे चली जाए, यानी कि जैसे आप बेड पर सोते हैं आप वैसे सो जाइए. तो उस हिसाब से जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये वाली आपकी साइड लेफ्ट होगी और ये होगी राइट. सो इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि हम डाइसेक्शन डॉर्सल साइड से करेंगे तो ये हमारी इंसेक्ट की कौन सी साइड होगी, राइट साइड. So this is right phallomere and this is left phallomere. So this is all about reproductive system of male cockroach. Female reproductive system of cockroach consists of pair of ovary which produce ova. If we talk about ovary, in the ovary there are 8 ovarioles. जैसे आप यहां पर देखिए, दिस इज द ओवरी, 1 2 3 4 बैक साइड में होंगे. हर ओवरी के अंदर क्या है, 8 ओवेरियोल और ओवेरियन टिब्यूल आर देयर. व्हाट आर दीज टिब्यूल एक्चुअली? ये वो टिब्यूल हैं जिनमें ओवा चेन की फॉर्म में अरेंज होंगे. जैसे जहां जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, आप ये सोचिए जो लेजर है मूव कर रही है लेजर लाइट, यहां पर ओवा की चेन है. सो कितनी चेन होंगी, 8 चेन होंगी और हर चेन के अंदर जो ओवा हैं वो अरेंज्ड है इन सीक्वेंस ऑफ देयर मैच्योरिटी. जो सबसे ज्यादा मैच्योर ओवा होंगे वो आगे की साइड होंगे और जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जाएंगे इमैच्योर और यंग ओवा होंगे. तो जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ेंगे उनमें मैच्योरिटी होगी और एक टाइम पर एक ओवरी कितने ओवा रिलीज करेगी, 8. So, female reproductive system of cockroach consists of pair of ovaries. These ovaries are present in 2nd to 6th abdominal segment. हर ओवरी में 8 ओवेरियन और ओवेरियल ट्यूब्यूल हैं which are chain of developing ova. At one time, one ovary will release 8 ova. So 8 ova यहाँ से, 8 ova यहाँ से. 16 ova are released by each cockroach at one time. Now these ovaries से arise होंगी oviduct. Oviduct join to form common oviduct and this common oviduct open outside as female gonopore. Open outside as female gonopore. Now
in the terminal part of oviduct, this is common oviduct और वेजिना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पेयर ऑफ स्पर्मेथिका, दो स्पर्मेथिका है, एक ये जो सैक लाइक है और दूसरा जो हाईली रिड्यूस्ड है। सो जो राइट स्पर्मेथिका है दैट इज हाईली रिड्यूस्ड, लेफ्ट स्पर्मेथिका, थीका का मतलब होता है चैम्बर, स्पम वो चैम्बर जिसमें स्पम स्टोर होते हैं। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, जब भी जैसे क्वेश्चन आता है जनरली बच्चे जल्दी से आंसर कर देते हैं कि स्पर्मेथिका कहाँ मिलेगा? मेल कॉकरोच में, जबकि यहाँ स्पर्मेथिका कहाँ है? फीमेल कॉकरोच में। कॉपुलेशन के दौरान मेल कॉकरोच विल डिलीवर स्पर्मेटोफोर इन द बॉडी ऑफ फीमेल कॉकरोच, यहां पर रिलीज होंगे और यहां से वो जाकर कहां स्टोर हो जाएंगे? स्पर्मेथिका में। कब तक? जब तक ओवा यहां से रिलीज नहीं हो जाता। तो स्पर्मेथिका आर फाउंड इन फीमेल कॉकरोच और उनका काम है स्पर्म को स्टोर करना, विच आर रिसीव्ड फ्रॉम मेल कॉकरोच। सो ओवरीज हैं जो ओवा रिलीज करेंगी, एक ओवरी में 8 ओवेरियोल हैं, ओवेरियोल इज चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा हैविंग अरेंजमेंट ऑफ ओवा इन ऑर्डर ऑफ मैच्योरिटी, एक टाइम पर एक ओवरी लगभग 8 ओवा रिलीज करेगी और 8 यहां से होंगे, दिस मेक्स टोटल नंबर 16। ओवरी से अराइज होंगी ओविडक्ट, ओविडक्ट ज्वाइन टू फॉर्म कॉमन ओविडक्ट विच ओपन एज फीमेल गोनोपोर इनसाइड ब्रूड पाउच। In case of female cockroach, 7th sternum along with 8th and 9th, 7th, 8th and 9th sternum fuse to form genital pouch और brood pouch, जिसमें आगे वाले चैम्बर को हम कहेंगे जेनाइटल चैम्बर और इस पीछे वाले पार्ट को हम कहेंगे वेस्टिब्यूलम। सो विद इन द ब्रूड पाउच what is there? There is opening of female gonopore, female genital aperture is present in the genital pouch. Beside this, there is also opening of collateral gland. Collateral gland are again present in female cockroach और इनका काम होगा they will release secretion which digest spermatophore। अभी हमने पढ़ा spermatophore is mass of spermatozoa जिनके अराउंड 3 लेयर हैं, उन लेयर को डिग्रेड कौन करेगा? सिक्रीशन फ्रॉम कोलेटेरियल ग्लैंड। इसके अलावा कोलेटेरियल ग्लैंड ऊथिका सिक्रेट करेंगी। अभी देखेंगे क्या होते हैं ये। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओवरी, ओवरी से ओवा रिलीज होंगे और यहां से भी ओवा रिलीज हुए, दे विल रिलीज्ड आउटसाइड। गोनेपोफाइसिस, अनदर नेम फॉर गोनेपोफाइसिस इज फेलोमियर और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल में अगर हमने देखें तो 3 एक्सटर्नल जेनिटेलिया और गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर है, राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर। इसी तरह फीमेल में भी देखें तो यहाँ पर गोनेपोफाइसिस और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये देखिए ये पेयर की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जेनाइटल अपर्चर। क्या काम होगा गोनेपोफाइसिस का? ये एग को होल्ड करके रखेंगे and assist in fertilization. How does it takes place? यहां से ओवा रिलीज होंगे, ये जो ओवा हैं वो लाइन में हेल्ड रहते हैं, किसकी हेल्प से? गोनेपोफाइसिस की हेल्प से। तो जब यहाँ पर ओवा रिलीज हुए हैं उसी दौरान स्पर्मेथिका से क्या रिलीज होंगे? स्पम्स, और ये स्पम्स फर्टिलाइज करेंगे किसे? एग को, और उसी दौरान जो कोलेटेरियल ग्लैंड है दे विल सिक्रीट ए सिक्रीशन एंड विद द रिजल्ट जो 14 to 16 एग है, 16 मैक्सिमम है, ऑन एन एवरेज ले तो हम 14 to 16 एग एक बार में रिलीज होंगे। सो ऑल दीज फर्टिलाइज्ड एग आर कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ootheca. So ootheca is secreted by secretion from collateral gland. ओवा यहां से रिलीज होंगे, जैसे ही ओवा यहां से रिलीज हुए दे आर हेल्ड बाय गोनेपोफाइसिस। इसी दौरान स्पर्मेथिका से क्या रिलीज होंगे? स्पर्म, वो ओवा को फर्टिलाइज करेंगे, कोलेटेरियल ग्लैंड सिक्रीशन सिक्रीट करेंगी और ये सिक्रीशन एग को कवर करेगा एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ootheca. सो फर्टिलाइजेशन इन कॉकरोच इज इंटरनल और कहां हो रही है? जेनाइटल पाउच में। फर्टिलाइजेशन विल takes place inside genital pouch, it is internal and female cockroach will release ootheca. एक ootheca में कितने fertilized egg होंगे? 14 to 16 and if favorable conditions are there all will develop into new cockroach. So एक cockroach एक ootheca में कितने fertilized egg होंगे? 14 to 16.
एक ब्रीडिंग सीजन में 1 कॉकरोच विल मेक 9 to 10 ऊथिका। सोचो कितना फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन और हाई मैग्नीट्यूड भी है इनका। एक ऊथिका में 14 to 16 एग हैं और 9 से 10 ऊथिका एक कॉकरोच रिलीज कर रही है ड्यूरिंग 1 ब्रीडिंग सीजन। तो नंबर ऑलमोस्ट जो है 150 के आसपास रहेगा कि 1 फीमेल कॉकरोच कैन गिव राइज टू 150 प्रोजेनी in 1 breeding season. Such a high rate of reproduction is exhibited by these animals. So that's all about female reproductive system of cockroach. If we see embryonic development means how the egg will develop into new cockroach. In case of cockroach, egg is centrolacythal. Centrolacythal egg means yolk is present in the center. Lacythal word is used for yolk. Centro means center. अगर yolk center में situated है तो इस तरह के yolk egg को हम कहेंगे centrolacythal egg. So insects में what type of egg is there? Centrolacythal egg. अब होगा क्या, इनमें सुपरफिशियल क्लीवेज होता है. व्हाट इज क्लीवेज? द प्रोसेस इन विच सिंगल सेल्ड जायगोट changed into multicellular morula. Single celled zygote will change into multicellular morula, then blastula, then gastrula. सुपरफिशियल क्लीवेज का मतलब होता है, सुपरफिशियल का मतलब भारी भारी. What does it mean? Cytoplasm and nucleus is present in the periphery. From this nucleus division start. These nuclear division are not followed by cytokinesis. अगर हम एक सेल साइकिल की बात करें, फर्स्ट न्यूक्लियस विल डिवाइड, देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन विल टेक्स प्लेस. बट यहाँ पर डिवीजन थोड़े यूनिक हैं. ओनली न्यूक्लियस डिवाइड. न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा. तो इसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज डेवलप्ड. और ये न्यूक्लियाई अपने आप को कहाँ अरेंज रखेंगे? पेरिफेरी पर, बिकॉज सेंटर इज ऑक्यूपाइड बाय यॉक. और अब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो गई. तो धीरे धीरे यूनिसेलुलर जायगोट किस में चेंज हो रहा है? मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में. सच टाइप ऑफ क्लीवेज इज नॉन एज सुपरफिशियल क्लीवेज. सो यॉक सेंटर में है, उसको हम कहेंगे सेंट्रोलसाइथल एग. और डिवीजन पेरिफेरी पर हो रहे हैं जायगोट के, तो इसलिए हम इसको कहेंगे सुपरफिशियल क्लीवेज. इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, ये टर्म हमने पहले भी एनिमल किंगडम में पढ़ी है. इनडिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब है नॉट इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, सॉरी, डिटर्मिनेट क्लीवेज. डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब है फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेज इट इज डिसाइडेड दैट विच पार्ट ऑफ जायगोट विल डेवलप इनटू विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो. व्हाट डज इट मीन? अगर हम कहें कि ये एम्ब्रियो है और इसमें ये जो पार्ट है वो राइट हाफ में डेवलप होगा और ये लेफ्ट में. सो इफ बाई चांस ब्लास्टोमियर्स आर सेपरेटेड, अगर कुछ सेल सेपरेट हो जाती हैं, कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट विल नॉट टेक्स प्लेस. कहने का मतलब जैसे ह्यूमंस में ट्विन फॉर्मेशन होती है उस तरीके से नहीं हो पाएगा. क्या कहना चाह रहे हैं? जस्ट हैव ए लुक एट दिस. यस, दिस इज जायगोट. मान लीजिए ये ब्लास्टोमियर है, दिस इज ब्लास्टोमियर. दिस ब्लास्टोमियर विल फॉर्म वन हाफ ऑफ एम्ब्रियो, दिस विल फॉर्म अनदर हाफ. बाय चांस अगर एक सेल डैमेज हो जाती है तो इससे आपका जो एम्ब्रियो होगा वो कैसा होगा? हाफ. Only one half will be developed. That is determinate cleavage. Determinate cleavage means from very first stage ये decided है कि कौन सा पार्ट, कौन एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट कौन से सेल से डेवलप होगा, कौन से ब्लास्टोमियर से डेवलप होगा. अगर हम ह्यूमन की बात करें, जायगोट से ये 2 ब्लास्टोमियर हैं और बाई चांस अगर ये दोनों ब्लास्टोमियर सेपरेट हो गए हैं तो ये भी कंप्लीट एम्ब्रियो बनाएगा और ये भी कंप्लीट एम्ब्रियो. तो इस केस में आपके पास कितने एम्ब्रियो हैं? 2. तो फिर न्यूबॉर्न बेबी भी कितने होंगे? 2. कॉकरोच के केस में ऐसा नहीं होगा. अगर जायगोट की डेवलपमेंट के दौरान, आगे जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कुछ सेल्स की डेथ हो गई है या कुछ सेल्स सेपरेट हो गई हैं,
complete development, normal development of embryo will not take place. Determined से याद रखना है, दृढ़ निश्चय, focused from very first stage. cells ने अपना भाग्य निर्धारित करके रखा है कि yes, I have to become this, I have to be this, I have to be this. If some part is lost, complete development of embryo will not takes place. So that is regarding egg and superficial cleavage and determinate cleavage. Now, if we talk about life history of cockroach, in the cockroach there is a zygote, fertilized egg. Egg will develop into a larva. The intermediate stage in the life of cockroach is known as nymph. And then nymph after molting will become adult. So such type of development is known as parometabolous development. So what is parometabolous development? If development is taking place through nymphal stage, if development is taking place through nymphal stage, such type of development is known as parometabolous development. If we talk about difference between nymph and adult, the size of nymph छोटा रहेगा as compared to adult cockroach. और दूसरा जो डिफरेंस है कि जो रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी है वो nymph में नहीं होगी. इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये nymph है या adult नहीं है, बिकॉज ओनली adult cockroach has wings. Only adult cockroach has wings. सेकेंड लास्ट निम्फल स्टेज में विंग पैड हो सकती हैं. विंग्स सिर्फ लास्ट जो है मोल्ट में होंगी, मतलब जब वो अडल्ट बन गया है. मोल्ट अभी हम बात करेंगे क्या है. सेकेंड लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड. ओनली अडल्ट कॉकरोच हैज विंग्स. तो यहां पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं हाउ nymph is different from adult cockroach. Nymph has wing pad. Wing pad भी लास्ट स्टेज में होंगे. ओनली अडल्ट कॉकरोच हैज विंग. अब मॉल्टिंग क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे. अभी नंबर आप याद कर सकते हैं. अडल्ट बनने के लिए निम्फ में लगभग 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है. और ये जो ऊपर हमने डायग्राम लिखा है, दिस इज ऑफ ootheca. दिस इज ootheca ऑफ कॉकरोच हैविंग मेनी फर्टिलाइज्ड एग. So that is in brief about embryonic development of the cockroach. Yes, ये फर्स्ट डायग्राम देखिए. दिस इज मॉल्टिंग. कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? रियल कौन है? सोचो, आप सोचिए, तब तक हम इसे डिस्कस करते हैं. सी, दिस इज लाइफ साइकिल. एग विल डेवलप इनटू निम्फ, और निम्फ मोल्टिंग के बाद किस में चेंज हो जाएगा? अडल्ट कॉकरोच में. ये देखिए, दिस इज नॉट रियल, दिस वन इज रियल. सरप्राइज्ड? यस. ये देखिए, ये इसका इंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है. जैसे स्नेक्स में हमने पढ़ा था शेडिंग ऑफ द स्किन, सेम प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन द कॉकरोच. व्हाट हैपन? हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन डज नॉट अलाउ ग्रोथ. निम्फ के बाहर भी हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, बॉडी की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करेगा, डज नॉट अलाउ एनिमल टू ग्रो. अब एनिमल क्या करेगा? हार्ड स्किन के अंदर एक नई स्किन क्रिएट करने लगेगा, सिक्रीट करने लगेगा. और एक ऐसा टाइम होगा जब एनिमल की बॉडी में दो स्किन होंगी, एक जो बहुत थिन है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, और एक जो बहुत हार्ड है. नाउ देयर इज अ टर्म मोल्टिंग और एक्डाइसिस, शेडिंग ऑफ द ओल्ड स्किन. ये देखो, इसने अपनी पुरानी स्किन को निकाल दिया. दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. पुरानी स्किन को इसने निकाल दिया है. अब जो नई स्किन है दैट इज सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, विल अलाउ ग्रोथ. थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि ये जो स्किन है, जो अभी थिन है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, धीरे धीरे काइटिन डिपॉजिट होने की वजह से फिर कैसी हो जाएगी? हार्ड. फिर ये फर्दर ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करेगी, फिर दोबारा से सेम प्रोसेस होगा. और ऐसा लगभग कितनी बार होगा? 13 टाइम्स. इसको हमने कहा मोल्टिंग. सो व्हाट इज मोल्टिंग? मोल्टिंग और एक्डिसिस इज शेडिंग ऑफ स्किन टू परमिट ग्रोथ ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट. कॉकरोच के केस में जो इंटरमीडिएट स्टेज है दैट इज नोन एज निम्फ. निम्फ का अडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाएगा? मेटामॉर्फोसिस. और कॉकरोच पारोमेटाबोलस इंसेक्ट है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है दैट इज टेकिंग प्लेस थ्रू निम्फ.
इसके अलावा अगर हम देखें कॉकरोच इज हैविंग वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम. सो प्रोथोरेसिक रीजन में एक ग्लैंड होती है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड. दिस प्रोथोरेसिक ग्लैंड विल सिक्रीट हार्मोन एक्डाइसोन, और एक्डाइसोन हार्मोन का काम क्या होगा? मोल्टिंग को कंट्रोल करना. सो दिस प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन एक्डाइसोन सिक्रीटेड बाय प्रोथोरेसिक ग्लैंड. मोल्टिंग का यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या रहेगा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग स्लोली एंड स्लोली साइज इज इंक्रीजिंग, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रॉपरली डेवलप्ड, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज अटेन्ड, और सेकेंड लास्ट लिम्फल स्टेज में विंग पैड होंगी, और लास्ट जो मोल्ट होगा उसमें क्या प्रेजेंट होंगी? विंग्स. सो दैट्स ऑल अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच. Next we will discuss about very interesting feature of arthropods. Arthropods are having simple eye which is known as ocellus as well as compound eye. अगर हम simple eye की बात करें तो that simple eye is having large number of photosensitive cell which can respond to different intensity of light and provide impulse and provide different kind of sensation to the animal. इसके अलावा कंपाउंड आई ऑफ द आर्थ्रोपोड्स इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फीचर. कंपाउंड आई क्यों कहा है हमने? बिकॉज अगर हम अपनी आई से कंपेयर करें तो हमारी आई में एक ही लेंस होता है. यहाँ पर कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच और अदर इंसेक्ट्स, यहाँ पे हम कॉकरोच को पढ़ रहे हैं स्पेशली, इज हैविंग मेनी लेंस. What does it mean? ये देखिए यहाँ से जो सरफेस व्यू से आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज एक्चुअली कॉर्निया. क्या है ये? कॉर्निया. ये देखो एक को स्ट्रक्चर को हमने इधर दिखाया है. कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 2000 ओमेटिडियम. एक आई में 2000 के आसपास क्या प्रेजेंट है? ओमेटिडियम. और ये एक ओमेटिडियम का डायग्राम है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. इस ओमेटिडियम में क्या क्या प्रेजेंट है? यहाँ सरफेस पे कॉर्निया प्रेजेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट. उसके बाद कॉर्निया के जस्ट बिलो क्या प्रेजेंट है? लेंस. तो आप देखिए एक आई में अगर 2000 ओमेटिडिया है तो 2000 ही कॉर्निया होंगे, 2000 ही लेंस होंगे, और इमेज भी कितना होंगे? 2000. लेकिन ध्यान रहे इमेज इज फॉर्म्ड इन पार्ट्स. ये आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं जैसे चाइल्डहुड स्टेज में कभी कोई आपने इस तरह का पजल गेम ट्राई किया हो. ये जैसे आपके बहुत सारे बॉक्सेस हैं जिनको आप मूव कर सकते हैं, ब्लॉक्स हैं ये, और इन ब्लॉक्स को मूव करके आपको कोई पर्टिकुलर इमेज कंस्ट्रक्ट करनी है. तो यहाँ पर होगा क्या? यू हैव टू क्रिएट इमेज. ये देखो ऐसे कोई भी इन सब बॉक्स को मिलाकर आपको क्या क्रिएट करनी है? इमेज. ऐसे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखो. यस. सो हर ब्लॉक को आप मानिए ओमेटिडिया. हर ब्लॉक को हम क्या कहेंगे? ओमेटिडिया. और हर ओमेटिडियम में इमेज बनेगी और इमेज इन सब ब्लॉक्स की इमेज का एडिशन होगी. जो भी इमेज कॉकरोच की आई में डेवलप होगी दैट इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ओमेटिडिया. ये देखो यहाँ से. और अगर हम सेंटर वाले ओमेटिडिया देखें जो पूरी तरीके से फिल हो गए हैं, देखिए वो इमेज का कोई आइडिया नहीं दे पाएंगे. यहाँ ये जो पार्ट है दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से इमेज का आइडिया हो पाएगा कॉकरोच को. सो कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच इज हैविंग 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया. ईच ओमेटिडिया इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इमेज. अब इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही ऑब्जेक्ट की 2000 इमेज मिलेंगी. नो, एक जो इमेज बनेगी वो इन 2005 में, जरूरी नहीं है सारे ओमेटिडिया इन्वॉल्व हो, वो डिपेंड करता है कौन से पार्ट को लाइट रिसीव हुई है. तो जिस जिस ओमेटिडिया को लाइट रिसीव होगी दे विल फॉर्म द इमेज. और इमेज इन जो भी ओमेटिडिया इसमें इन्वॉल्व है उनके कॉम्बिनेशन से बनेगी. सो दिस इज कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच वेयर इमेज इज फॉर्म्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ ओमेटिडियम. If we talk about vision in compound eye, in insects
दो तरह की कंपाउंड आई हैं, एक जिनमें सुपरपोजिशन इमेज बनेगी और एक जिनमें अपोजिशन इमेज बनेगी। नाउ हाउ विल यू डिफरेंशिएट सुपरपोजिशन फ्रॉम अपोजिशन इमेज? जो इंसेक्ट्स डे टाइम एक्टिव हैं, डायर्नल एक्टिव हैं, उनमें फोकल अपोजिशन कंपाउंड टाइप इज प्रेजेंट, और जो रात को एक्टिव है जैसे कॉकरोच जो है दैट इज नॉक्टर्नल। सो इन केस ऑफ कॉकरोच रिफ्रैक्टिंग सुपरपोजिशन कंपाउंड आई इज प्रेजेंट। ना व्हाट इज द डिफरेंस हियर? ये अगर हम बात करें दीज आर ओमेटीडिया, यहाँ पर भी ओमेटीडिया है। यहाँ देखिए जो ओमेटीडिया है दे आर सेपरेटेड बाय दीज लॉन्ग पिगमेंट सेल। ये जो पार्ट दिखाया गया है दीज आर लॉन्ग पिगमेंट सेल। One ommatidium is isolated from another ommatidium by pigment cell, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइट फोकसिंग ऑन वन ओमेटीडिया वो दूसरे ओमेटीडिया के साथ ओवरलैप नहीं करेगी और सबका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो अलग अलग होगा। जैसे इस ओमेटीडिया में इमेज अलग बनी है, इसमें अलग और इधर अलग, तो जो इनके जो इमेज एरिया होंगे वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे। एंड इमेज इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय ऑल द ओमेटीडिया। सुपरपोजिशन इमेज में वर्किंग सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो ओमेटीडिया है दे आर नॉट सेपरेटेड बाय पिगमेंट सेल, सिर्फ सरफेस पर ही ये पिगमेंट सेल से सेपरेटेड है, नीचे से सेपरेटेड नहीं है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ से जो लाइट आई है इट विल बेंड एंड फोकस ऑन दिस, यानी देखो सेम जो पॉइंट पर जो इमेज बनी है दैट इज बाय दिस डिफरेंट ओमेटीडिया की जो इमेज है वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेगी, ओवरलैप। सो यहाँ पर दो पॉइंट है कि जो टोटल इमेज है वो सभी ओमेटीडिया के मिक्सचर से बनेगी दैट इज कंपाउंड आई, और लेकिन एक जो इमेज होगी वो दूसरी इमेज के साथ कुछ हद तक क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, सुपरपोजिशन एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगी, जिससे वो जो इमेज होगी दैट विल बी मोजाइक इमेज। और इस तरह की इमेज के अंदर जो क्लैरिटी है वो कम होगी, रिजोल्यूशन कम होगा, लेकिन सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा। और ये जरूरत भी है बिकॉज रात को जो लाइट इंटेंसिटी है वो कम है। तो ये देखिए कितना वंडरफुली अडेप्टेड है कॉकरोच टू सी इन डार्क, जहां पर लाइट इंटेंसिटी कम है तो डिफरेंट जो ओमेटीडिया हैं वो आपस में कोरिलेट करके वर्क कर रहे हैं और जो इमेज बन रही है वो इमेज एक दूसरे ओमेटीडिया के साथ ओवरलैप कर रही है, जबकि यहाँ पर इमेज फॉर्म्ड बाय वन ओमेटीडियम डू नॉट overlap with image formed by another ommatidium because ommatidia are separated by pigment cell and these pigment cell absorb light and does not allow light to pass। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर यहाँ पिगमेंट सेल होती तो ये लाइट इधर आती ना कि यहाँ जाती, लेकिन पिगमेंट सेल नहीं होने की वजह से ये देखो यहाँ पर ऐसे बैंड हो रही हैं ऐसे। सो इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इमेजेस। दूसरा, एक इमेज दूसरी इमेज के साथ क्या करेगी, ओवरलैप। इसकी वजह से इस विजन को हम कहेंगे मोजाइक विजन। और मोजाइक विजन की खास बात क्या है कि सेंसिटिविटी कम रहेगी और रिजोल्यूशन क्या रहेगा, ज्यादा। सो दैट्स ऑल अबाउट कंपाउंड आई ऑफ द कॉकरोच।